Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So today we are going to cover up Essay 700, which is forming an opinion and reporting on the financial statements. Right, in case you are new to this channel, the link of these notes is mentioned in the description box below. Also, you can find out the link of playlist in which you can find out all the other essays which have already been uploaded. Right, so do check it out. Right, let's start with this essay. In this particular essay, we are going to understand what are the types of reports, types of audit reports that the auditor issues and how he expresses his opinion in this particular report. Right. Also, we are going to understand what is the content, what is the form of that auditor's report, and why auditor's report is being prescribed in this particular essay. The reason is to maintain or to ensure that there is consistency in the audit report. Okay, so that is why the institute has given the format in which the auditor has to issue his report. Right. So let's start with the essay. First of all, we are going to understand what do you mean by or what are the types of audit reports, right? So there are two types of audit reports. First is the unmodified report and second one is the modified report. Whenever we are saying unmodified report, this unmodified report is going to be studied in which essay? Essay 700, which we are going to cover today. But whenever I say a modified report has again two classifications. In a modified report, what you give is an unmodified opinion or a modified opinion. This will depend upon the situation, the conclusions that you have reached, the evidences that you have gathered. Right, so modified opinion we are going to cover up in essay 705 and the unmodified opinion part we are going to cover up in essay 706. So now this is the classification जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस particular standard के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो. तो इस particular standard के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो? Unmodified report के बारे में पढ़ने वाले हो. Whenever there is any modification or modification to the report, in that case I'm not talking about the opinion. I'm saying modified report. Report में कुछ modification है. Opinion आपकी unmodified भी हो सकती है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं modified report के अंदर we have two classifications. First one is the unmodified opinion and second one is the modified opinion. In modified opinion we again have three classifications. First one is the qualified, second one is the adverse and third one is disclaimer of opinion. Whereas in case of unmodified opinion, your opinion remains unmodified but there is some modification in your report. Modification in terms of what? In terms of two paras. Either it can be an EOM para, emphasis of matter para, or other matter para. We are going to study it later on in essay 706. So for today our topic of discussion would be what? Our topic of discussion would be about unmodified report, that is covered by essay 700. What do you mean by unmodified report? So reports when the auditor concludes that the financial statements are prepared in all material respects as per the applicable FRF. When the auditor is saying कि जो financial statements है वो हर तरीके से, हर material aspect को अगर मैं consider करूँ तो जो FRF एंटिटी को फॉलो करना था, एंटिटी ने वही FRF के अकॉर्डिंगली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया है मटीरियली. ठीक है, छोटी मोटी गलतियां हो सकती है, छोटी मोटी डेविएशंस हो सकती हैं, बट मटीरियली FRF के हिसाब से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया गया है एंड ऑडिटर इज कंक्लूडिंग दिस फैक्ट इन हिज रिपोर्ट. इन दैट पर्टिकुलर केस द ऑडिटर इज गोइंग टू गिव एन अनमॉडिफाइड रिपोर्ट. क्लियर टिल हियर? ओके, so let's move further. What is the scope of this essay? Scope की बात करें तो scope में first of all we are going to understand what are the responsibilities of an auditor. So responsibility is to form an opinion on the financial statements. That is why this is the objective. No, you must have studied essays 200. What is the overall objective? To give the opinion on the financial statements. Right. So auditor's responsibility to form an opinion on the financial statements. The content and form of the auditor's report is going to be our concern over here कि किस तरीके से audit report में क्या क्या चीज़ें mention करनी होती है, किस तरीके से mention करनी होती है, what is the sequence in which you have to mention all the details, right? Third, promotes the consistency in the audit report. Now if you are going to follow this particular format and you are going to prepare your audit reports in this sequence, definitely your audit report will have some consistency from this year to this year. If you are going to compare them from one year to another year, you are going to realize that there is consistency in your audit report. Why? Because you are following this particular essay, the format which is being given in this particular essay. Right? Right.
Next is, what do you mean by general purpose general purpose framework? So in general purpose framework, we have two types of framework. First one is the fair presentation framework and second one is the compliance framework. When I say compliance framework, there is no deviation allowed. The management cannot deviate from the applicable FRF. Whatever is written in the applicable FRF, the management has to follow the same. But when I say fair presentation framework, so the management is allowed to deviate, but that too only if it is giving a better presentation of the financial statements or in the financial statements, then only the management is allowed to deviate from the applicable FRF, otherwise not. But in compliance framework, the management is not allowed to deviate in any case. Okay, so you must have understood what is the difference. Let us do it in detail. Fair presentation framework and compliance framework, right? So first of all, let us understand about the compliance framework. So compliance with the requirements of the framework, you have to comply. Whatever is being written in the framework, you have to comply with the same, but does not contain the acknowledgement as in fair presentation framework. Let us understand what acknowledgement they are talking about. So first of all, let us understand about the fair presentation framework. So in the fair presentation framework, there is a requirement that you have to comply with the requirements of framework. That is okay, but acknowledges that the following may be necessary for fair presentation fair presentation of the financial statement. So here what it is written is that if the management thinks so, they can acknowledge that for the fair presentation of the financial statements, what they have done is they have given the disclosures beyond what was required in the FRF. FRF mein there was a requirement that you have to disclose these two particular points, but in order to present the financial statements in a better way and fairly, the management provided some more disclosures, right? So in this case, you are definitely deviating or you are giving some additional information which was not required as per the applicable FRF. So in this particular case, you can acknowledge this that for the fair presentation of financial statements, we have given some disclosures which are beyond specifically provided in the FRF. Okay. Next, second, also there is also a possibility that management might have to depart from the requirement of framework, which means in order to present the financial statements in a better way, management might have to go beyond what was required or might have to deviate from what was written in the FRF. Why? Because the presentation of the financial statements was to be made in a better way. In order to maintain that, the management departed, but this will happen definitely in some rare situations. आप बार बार ऐसा नहीं कर सकते, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको डिपार्चर करना पड़े फ्रॉम व्हाट वाज रिक्वायर्ड इन द एप्लीकेबल एफआरएफ, ठीक है, बट वो करने का पर्पस और करने के पीछे का जो रीजन या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, दैट शुड ओनली बी कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेटर प्रेजेंटेशन दिख रहा था देन यू डिड सम डिपार्चर. Clear till here? But there is no such acknowledgement which is allowed in which compliance framework. Why? Because you have to comply with the framework. You have to comply with the framework or the applicable FRF, whichever is applicable to you. You cannot deviate. So that is why you are not required to give any acknowledgement also. Okay. I hope you are clear with the difference. Okay. Let's move on to the third part of this particular essay, which is elements of unmodified report. राइट आपको सबसे पहले तो ये पता चल गया होगा कि इस essay के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अब अनमॉडिफाइड रिपोर्ट के क्या एलिमेंट्स होने वाला है, क्या सीक्वेंस होने वाला है, क्या क्या हमें बताना पड़ेगा, क्या क्या डिटेल्स देनी पड़ेगी, वो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं. सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ दिस पर्टिकुलर essay, elements of unmodified report. So you have to learn the sequence also. First of all, you will give the title to the report. टाइटल से पता चलेगा ना रिपोर्ट किस बारे में है, किस चीज़ पर आपने रिपोर्ट इशू करी, किस चीज़ की रिपोर्ट है. सो कुछ भी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट मिलता है तो आपको उसका टाइटल देख के समझ आना चाहिए कि इस डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या होगा या इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या डिटेल्स दी होंगी. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरियाज विच यू मस्ट नो कि टाइटल होता है रिपोर्ट का. अब टाइटल किस लिए होता है? टू डिस्टिंग्विश दिस रिपोर्ट फ्रॉम द रिपोर्ट्स इशूड बाय अदर्स. Audit report may be titled as independent auditor's report. We all know independence एक बहुत मेजर क्राइटेरिया होता है. ऑडिटर शुड ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट. तो आपको उसको दूसरी रिपोर्ट से थोड़ा अलग प्रेजेंट करने के लिए क्या टाइटल दे सकते हो? यू हैव टू गिव द टाइटल एज इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. करेक्ट है यहाँ तक? चलो, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट विच इज एड्रेसी. अब आपने जो रिपोर्ट इशू करी है वो रिपोर्ट किसके लिए है?
किस पर्सन के लिए रेलिवेंट है, किस स्टेक होल्डर के लिए रेलिवेंट है, वो आपको बताना पड़ेगा. सो द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी एड्रेस्ड एज अप्रोप्रिएट. जनरली इट इज एड्रेस्ड टू द पर्सन्स for whom it is prepared, that is the members of the company. AGM में present होती है आपकी audit report along with the financial statement, so that is why it is written over here कि generally हम किसका नाम लिखते हैं, हम लिखते हैं members of the company. We address the report to the members of the company. Okay, so first is title, second one is addressee. Let's move on to the third one, which is opinion section. Now in this particular section आपको नाम से पता चल गया होगा आपको क्या देना है. आपको financial statements के ऊपर जो भी आपकी opinion है उसको लिखना है. So this includes the opening और introductory statement which comprises of. तो आप सीधा ही नहीं लिख दोगे कि मेरी ये opinion है financial statements पर. पहले आपको कुछ introduction देना पड़ेगा, कुछ opening statement देनी पड़ेगी. opening statement का मतलब आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी entity है जिसके लिए आपने ये audit report issue करी है. Secondly you will tell कि मैंने balance प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सब का ऑडिट किया है. थर्डली यू विल मेंशन किस पीरियड के लिए आपने किस पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया है. ठीक है, सो यू विल मेंशन द पीरियड या फिर डेट जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिलोंग करती हैं. ऑल्सो यू विल गिव द स्टेटमेंट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट हो चुकी हैं एंड दिस इज माय ओपिनियन ऑन दैट. सो यू विल गो स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गिव द नेम ऑफ द एंटिटी. सेकेंडली यू विल टेल कि आपने किस चीज़ को ऑडिट किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या टाइटल्स हैं, यू विल टेल दैट. अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से पीरियड को बिलोंग करती है वो बताओ. देन यू विल मेंशन कि मैंने इन स्टेटमेंट्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं इनका मैंने ऑडिट कर दिया है एंड दिस इज माय ओपिनियन ऑन दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्लियर टिल हियर? ओके. अब यहाँ पर दिया हुआ है अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी एक्सप्रेस्ड एज. किस तरीके से आप एक्सप्रेस करोगे अनमॉडिफाइड ओपिनियन को? सो देयर आर टू ऑप्शंस. फर्स्ट वन इज द फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, दूसरा कंप्लायंस फ्रेमवर्क, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या हुआ है. तो अब फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में देखो तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रखा है मैनेजमेंट परमिटेड टू टेक द डेविएशंस. क्यों? क्योंकि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंटेशन को फेयर बनाना है, तो उसके लिए अगर उसको डेविएशंस करनी पड़ जाएं तो वो कर सकते हैं. दे आर अलाउड टू डू सो, बट यहाँ पर दे आर नॉट परमिटेड टू डू सो. कंप्लायंस फ्रेमवर्क मतलब जैसा बोला वैसा ही करना पड़ेगा. ठीक है, सो आपकी इस पर जब ओपिनियन दोगे तो आपका क्या सेंटेंसेस क्या होंगे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं. फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के केस में इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट फेयरली in all material respects in accordance with the applicable FRF, whichever FRF is applicable to that particular entity. या फिर आप लिख सकते हो in our opinion the financial statements give a true and fair view of the financial statements in accordance with the applicable FRF. तो यहाँ पर true and fair या present करती हैं fairly, ये words आ रहे हैं जिससे कि पता चल रहा है ये फिर fair presentation framework के बारे में बोल रहे हैं. Second is the compliance framework. इसमें आप क्या लिखोगे? इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स. यहाँ पर फेयरली वर्ड, ट्रू एंड फेयर ये सब नहीं लिखा हुआ, सिर्फ यहाँ पर लिखना है आपको इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ. करेक्ट है? तो आपको डिफरेंस समझ आ गया दोनों के बीच में, ये भी इंपॉर्टेंट एरिया है. ठीक है, अब आपने ओपिनियन दे दी. अब ओपिनियन सिर्फ दे देने से काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपका ओपिनियन को देने का बेसिस क्या था, किस बेसिस पर आपने कह दिया कि हाँ जी ये अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट है. तो कोई रीज़न भी तो होगा ना. सो इस केस में आप बताओगे कि रीजंस क्या क्या हैं. सो दिस सेक्शन विल प्रोवाइड द following. First of all, a statement that audit was being conducted in accordance with the standards on auditing. अब सबसे पहले तो बताओ कि मैंने जो काम किया है वो मैंने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम किया है. जैसे आपने ओपिनियन सेक्शन में सीधा नहीं लिख दिया था ना कि मेरी ओपिनियन ये है, वैसे ही आप बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में सीधा नहीं लिखोगे कि आपकी ओपिनियन क्या है. यू आर गोइंग टू मेंशन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन यू आर गोइंग टू कंक्लूड कि हाँ भाई ये मेरा बेसिस था, ये एविडेंसेस गैदर हुए, इन एविडेंसेस के बेसिस पर मैंने ये कंक्लूड किया, कंक्लूजन के बेसिस पे आई गिवन द ओपिनियन. ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट. अ स्टेटमेंट दैट ऑडिट वाज बीइंग कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. करेक्ट है. सेकेंड, it also refers to the section of audit report that describes the auditor's responsibilities. अभी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं. We'll have one section over here where it is mentioned what are the responsibilities of the auditor. एक आएगा मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक पैराग्राफ आएगा ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो आप यहाँ पर मेंशन करोगे कि प्लीज रेफर टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑल्सो कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी. पहले आप जब भी रीजन बता रहे हो ना
तो आप सबसे पहले बताओ, देखो मैंने तो जो ऑडिट किया है वो मैंने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बेसिस पर या उसके अकॉर्डिंगली करा है. सेकेंडली विल मेंशन कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर मेंशनड है और मैंने उनको obviously fulfill किया है. Thirdly, you will mention it also states that the auditor comply with the ethical requirements including independence. Ethical requirements you remember SA 200, SA 220 ये सब आपको याद होंगे. इसमें भी have already covered these points. तो इसके अंदर बताया हुआ है कि ऑडिटर कंप्लाई कर रहा है विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स, जिसमें इंडिपेंडेंस भी आती है क्योंकि आपकी रिपोर्ट कैसी है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. फोर्थली, it also covers auditors believing that they had sufficient and appropriate audit evidence to provide a basis for opinion. तो अब आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास sufficient appropriate audit evidences हैं जिसके basis पर you have concluded and thereby you have given the opinion on the financial statements. So this is what you are going to write in your basis for opinion para. ठीक है, तो अगर मुझसे कोई मांगे तो मेरे पास सारे के सारे सबूत हैं, सारे सारे एविडेंसेस हैं जिसके बेसिस पर आई कैन प्रूव कि मैंने ऐसा ओपिनियन क्यों दिया है. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ गलती ही नहीं थी, अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, तो आपको कुछ गलत किया हुआ हो इस चीज़ का आपके पास एविडेंस नहीं होगा. यू विल हैव एवरीथिंग विच शोज कि हाँ सब कुछ सही है मटीरियली, राइट. तो ये यहाँ पर आप लिखकर यू कैन क्लोज दिस पर्टिकुलर सेक्शन. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गोइंग कंसर्न. इसको पढ़ने से पहले लेट अस क्विकली रिवाइज हमने क्या क्या हेडिंग्स पढ़ी हैं एलिमेंट्स में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी टाइटल, सेकेंडली एड्रेसी, थर्ड यस ओपिनियन सेक्शन, फोर्थ बेसिस फॉर ओपिनियन, फिफ्थ क्या है हमारे पास, गोइंग कंसर्न. अब गोइंग कंसर्न ऑडिट रिपोर्ट में कब आएगा, तब आएगा जब जो हमने SA 570 किया था, जस्ट इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ था वो SA 570 का था, जिसमें हमने बोला था कि अगर कोई मटीरियल अनसर्टेनिटीज़ होती हैं उस केस में यू हैव टू मेंशन दैट इन दी ऑडिट रिपोर्ट. तो ये गोइंग कंसर्न वाला जो पैरा है ना, ये तभी आएगा, सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब SA 570 के हिसाब से देयर इज़ अ केस जहाँ पर मटीरियल अनसर्टेनिटी है विद रिस्पेक्ट टू द गोइंग कंसर्न. आई होप आई एम क्लियर. मतलब ये ऐसा वाला पैरा नहीं होगा या ऐसा वाला सेक्शन नहीं होगा जो हमेशा आएगा, ये तभी आएगा जब ऐसे 570 के हिसाब से देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट कि आपका जो मटीरियल अनसर्टेनिटी है वो एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से यू हैव टू गिव द रिपोर्टिंग, यू हैव टू रिपोर्ट ऑन द सेम. सो उसी केस में सिर्फ और सिर्फ ये फिफ्थ पॉइंट आएगा, अदरवाइज नहीं. ठीक है, नेक्स्ट, की ऑडिट मैटर विल बी गिवन इन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज. ये चीज़ याद रखना, सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड एंटिटीज एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ SA 701. तो अब ये भी तभी आएगा जब SA 701 के हिसाब से होगा. अब 701 में क्या होगा, हम 701 करते हुए पढ़ेंगे. बट यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि ये गोइंग कंसर्न भी, की ऑडिट मैटर भी कैसे पैराज है, ये ऐसे पैराज है जो कंपलसरी या मैंडेटरी नेचर के नहीं है. ये तभी आएंगे जब इनकी रिक्वायरमेंट होगी. ऐसा नहीं है कि हर एक ऑडिट रिपोर्ट में आपको ये मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट, अदर इन्फॉर्मेशन वेयर एप्लीकेबल दिस सेक्शन रिक्वायर्स रिपोर्टिंग एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ SA 720. तो इससे भी पता चल गया कि दिस इज ऑल्सो नॉट अ कंपलसरी सेक्शन विच हैज टू बी मेंशन्ड इन द ऑडिट रिपोर्ट. ये भी आपका कैसा हो गया, अगर चाहिए होगा, एप्लीकेबल होगा तो ही लिखना है. तो SA 720 के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी दी अदर इन्फॉर्मेशन वाली थिंग्स. अगर वहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट आ रही है दैट यू हैव टू मेंशन द सेम इन द ऑडिट रिपोर्ट, ओनली देन यू आर गोइंग टू मेंशन इट, अदरवाइज नॉट. सो अभी तक मैंने 3 ऐसे पैरास पढ़ लिए जो कि मुझे हमेशा ऑडिट रिपोर्ट में मिले, ऐसा नहीं है. ओनली इफ दे आर रिक्वायर्ड टू बी मेंशन तभी होंगे. कौन से गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर, पैरा, और थर्ड वन इज द अदर इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो ये मेरे मैंडेटरी नेचर के सेक्शंस नहीं हैं. Next, management's responsibilities. This has to be mentioned in all the audit reports. Yes, it has to be mentioned. तो इसमें क्या है, इसके अंदर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी जो मैनेजमेंट की बनती हैं. भाई मैं ऑडिटर हूँ, मेरे को अपनी रिपोर्ट में बताना पड़ेगा ना कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो ये सब चीज़ों में अगर गलती है तो मैनेजमेंट की गलती है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो मैं आपको बता दूंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेंशन कि मेरी तरफ से मतलब मेरी तरफ से नहीं, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो बताएंगे. इसके बाद हम बताएंगे कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज एन ऑडिटर. ठीक है, तो पहले मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सबको पता है मैनेजमेंट को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं FRF के हिसाब से. सो दिस इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल FRF. दिस वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट. सेकेंडली, मेंटेनिंग द एडिक्वेट रिकॉर्ड्स टू सेफगार्ड द एसेट्स एंड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड. एसेट्स को सेफगार्ड करना, ये भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी.
रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फ्रॉड को प्रिवेंट करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कुछ इंटरनल कंट्रोल्स लगाकर कैसे भी करके उनको प्रिवेंट करना था। अब चलो प्रिवेंट नहीं कर पाए, वो हो गया है, तो उसको डिटेक्ट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर थी, मैनेजमेंट पर थी। तो ऐसे 240 आपको याद आ रहा होगा, उसमें भी हमने ये चीज़ कवर की थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट की होती है। सेकेंडली मेकिंग रीजनेबल जजमेंट्स एंड एस्टिमेट्स, ये हमने कर चुके हैं ऐसे 540, जिसमें हमने जजमेंट्स एस्टिमेट्स की बात करी थी, तो ये सारा काम किसका था, मैनेजमेंट का था। डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग द नेसेसरी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, ये भी किसका था, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। कंट्रोल्स को डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंट करना, मेंटेन करना। नेक्स्ट असेसिंग एप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कि गोइंग कंसर्न अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, ऐसे 570, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, मैनेजमेंट की थी। हम तो चेक करते थे ना कि उन्होंने सही से असेस किया है या नहीं, पीरियड सही से सिलेक्ट किया है या नहीं, है ना। तो ये सारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती थी, मैनेजमेंट की होती थी। नेक्स्ट इज ओवरसीइंग दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, की रिपोर्टिंग सही से कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, जिस तरीके की रिपोर्ट्स निकलनी चाहिए वैसी हो रही है नहीं हो रही। ऑल दीज आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट, राइट। अब ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन सबको चेक करना कि वो काम सही से मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल किया या नहीं किया है। तो ये सारे एसेज के जो मैंने आपको नाम बोले, या तो आप एसेज के नाम याद करके मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिख सकते हो, जैसे कि आपको याद आ जाएगा SF 240 में मैंने पढ़ा था कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको एडिक्वेट रिकॉर्ड्स बना के रखने हैं, जिससे कि वो अपने एसेट्स को सेफ गार्ड कर सके, अपने फ्रॉड्स को प्रिवेंट और डिटेक्ट कर सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन FRF के हिसाब से मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। SA 540 के अकॉर्डिंग रीजनेबल जजमेंट्स एंड एस्टिमेट्स को बनाना भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। IFSC को डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंट करना, मेंटेन करना, ये भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन SA 570 की अप्रोप्रिएटनेस को असेस करना, दैट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को ओवरसी करना, दैट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। करेक्ट। नेक्स्ट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ऑडिटर की बारी आ गई, तो इस सेक्शन के अंदर हम सबसे पहले तो बताएंगे कि ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्टेनिंग द रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल are free from material misstatements and issue the auditor's report that concludes the auditor's opinion. So this is what we have studied in SA 200. This is the objective of the auditor. So you'll write the मेन थिंग हेयर कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑब्वियसली अपना ऑब्जेक्टिव आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फुलफिल करना, तो दिस इज व्हाट यूल राइट ओवर हियर। सेकेंडली यूल गिव एक्सप्लेनेशन विद रिस्पेक्ट टू रीजनेबल एश्योरेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी, बिकॉज आप रीजनेबली एश्योर करते हो, आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते हो बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशंस। तो आप क्या करते हो, आप सारी चीज़ें चेक नहीं करते हो, आप मटीरियलिटी लेवल डिसाइड करके यू डिसाइड कि मुझे कितना कितना चेक करना है, राइट। तो आप इसको इस चीज़ की भी एक्सप्लेनेशन दे दो। स्टेटमेंट दैट द ऑडिटर एक्सरसाइजेस प्रोफेशनल जजमेंट एंड मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। दिस वाज आल्सो रिटन इन SA 200 की हमें प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करके काम करना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके रहना है, हम अलर्ट रहेंगे पूरा ऑडिट करते टाइम। सो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी इन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन। सेकेंडली SA 315 SA 330 के हिसाब से जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी उसको कॉपी पेस्ट कर दो। देखो एक वो वाले एसेज आपने पढ़े हुए हैं, तभी आप SA 700 सीरीज़ को अच्छे से समझ पाओगे। दैट इज़ वाई हम सबसे लास्ट में SA 700 सीरीज़ पिक करते हैं। मैंने इतने टाइम से इसीलिए अपलोड नहीं किए थे क्योंकि और एसेज पेंडिंग थे, तो पहले वो एसेज करना ज़रूरी है, उसके बाद आपको ये एसेज ईजी लगेंगे और समझ भी आएंगे। सो दैट इज़ वाई इफ़ यू डोंट नो अबाउट ऑल दीज एसेज, SA 315, 200, ऑल दीज SA 570 वगैरह वगैरह, तो पहले उनको कवर अप करना, उसके बाद इनको देखना, ठीक है। सो स्टेट द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क्स ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। दिस वाज SA 315। डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स रिस्पॉन्सिव टू द असेस्ड रिस्क। जो रिस्क आइडेंटिफाई किए असेस किए हैं उनके लिए आपको क्या रिस्पॉन्सेज देने हैं, SA 330। उसके लिए आपको डिज़ाइन करने पड़ेंगे, परफॉर्म करने पड़ेंगे प्रोसीजर्स, आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लेने पड़ेंगे, आपको इंटरनल कंट्रोल्स को समझना पड़ेगा SA 315, जिसके बेसिस पर आप डिसाइड करोगे कि आपको कितना चांसेस है, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स कितने हो सकते हैं। एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द IFC विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आपको सारे कंट्रोल्स तो चेक नहीं करने होते, आपको कंट्रोल्स चेक करने हैं विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो रेलिवेंट हैं उनकी
कितने एडिक्वेट हैं और कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, उसके ऊपर यू हैव टू एक्सप्रेस द ओपिनियन. सो दिस यू आर गोइंग टू राइट ओवर हियर. दिस इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सेकेंडली 540 ऐसे अगर आपको याद है एस्टिमेट्स वाला था. सो इवैल्यूएट करना है. मैनेजमेंट को क्या करना था, मैनेजमेंट को वो करना था, बनाना था, जजमेंट्स लेनी थी, एस्टिमेट्स बनाने थे. लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है कि क्या वो अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ये सब अप्रोप्रिएट है, यानी इस चीज़ को इवैल्यूएट करना है. सो दीज आर द वर्ड्स विच यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और क्या चीज़ ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इवैल्यूएट करना कि क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अप्रोप्रिएट है, रीजनेबल है, उन चीज़ों को इवैल्यूएट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नेक्स्ट essay 570 गोइंग कंसर्न से रिलेटेड, इवैल्यूएट द ओवरऑल प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इवैल्यूएट दी एप्रोप्रिएट. अब ये सब ऐसे 570 कैसे हो गया, ऐसे 570 इसलिए हो गया क्योंकि अगर गोइंग कंसर्न बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी तो डेफिनेटली वो डिफरेंट होंगी, और अगर गोइंग कंसर्न बेसिस पर नहीं बनेंगी तो डिफरेंट होंगी. तो दैट इज वाई ऐसे 570. राइट. नेक्स्ट, इवैल्यूएट दी एप्रोप्रिएटनेस ऑफ यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. इसमें आ जाते हैं एक एक करके. इसके अंदर in addition, auditor's responsibility section shall also cover the following: responsibilities as to the matters to be communicated to TCWG. Essay 260, providing a statement to TCWG on compliance with ethical requirements, determining the key audit matter out of the matters communicated to TCWG. तो एक चीज़ आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि ऑडिट मैटर के बारे में, कि जो मैटर्स आप TCWG को बताते हो उसी में से कोई मैटर आपका की ऑडिट मैटर होता है जिसको आपको रिपोर्ट करना होता है पॉइंट नंबर 6 के अंदर, एंड दैट टू एज पर essay 701. करेक्ट है. तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी. बेसिकली अगर आप देखो जो आपने एसेस पढ़े हैं उनके अंदर जो जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी थी वो सारी की सारी यहाँ पर आपको लिखनी पड़ती हैं. ठीक है. नोट, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बी इंक्लूडेड. आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो विद इन द मेन बॉडी ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, या फिर आप क्या कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बहुत ज़्यादा होती हैं, अगर आप ऑडिट रिपोर्ट में ही लिखना चाहते हो तो लिख दो. अदरवाइज यू हैव अ चॉइस कि आप एक अपेंडिक्स दे सकते हो, अपनी पूरी ऑडिटर्स रिपोर्ट बनाओ, उसके बाद एक अपेंडिक्स अटैच कर दो कि इसके अंदर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंशनड है. ठीक है, एक ही ऑप्शन होता है. दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि आप किसी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की वेबसाइट पर अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हुई हैं तो आप उसका रेफरेंस भी दे सकते हो. अगर आपको लॉ और रेगुलेशन के हिसाब से बोला हुआ है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती थी, तो इस केस में आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर वेबसाइट का रेफरेंस भी दे सकते हो कि उस वेबसाइट के ऊपर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन्ड है. ठीक है. तो इस केस में भी आपके पास ये चॉइस है. तो या तो डायरेक्टली ऑडिटर्स रिपोर्ट में लिख दो, दूसरा ऑप्शन क्या है, अपेंडिक्स अटैच कर दो, थर्ड ऑप्शन है अगर लॉ और रेगुलेशन के हिसाब से आपको ऑडिट करना है तो उस अथॉरिटी की कोई वेबसाइट है जिस पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन है तो आप उस पर रेफरेंस भी दे सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, other reporting requirements. So other reporting responsibilities will be reported under a separate section titled as reporting on other legal and regulatory requirements. If the auditor is required to report on matters other than the financial statements, a separate main heading, report on financial statements, should be given above the opinion section. तो देखो, अगर ऑडिटर को कुछ ऐसे मैटर्स पर भी रिपोर्ट करना है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा है, तो इस केस में आपको एक और सेपरेट सेक्शन बनाना पड़ेगा, सेपरेट हेडिंग देनी पड़ेगी जिसका नाम होगा रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो आपका ओपिनियन सेक्शन था ना उससे पहले आएगा. ओपिनियन सेक्शन आपका थर्ड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट से पहले आएगा. ठीक है. नेक्स्ट, सिग्नेचर की बात करते हैं. तो सिग्नेचर में शुड बी इन पर्सनल नेम एंड फर्म्स नेम अलॉन्ग विद द मेंबरशिप नंबर एंड FRN. तो आपकी फर्म का नाम होगा, आपका खुद का नाम होगा, दोनों चीज़ें मेंशन करोगे, मेंबरशिप नंबर भी मेंशन करोगे और फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन करोगे सिग्नेचर करते टाइम. प्लेस क्या होगी, जहाँ पर भी आप ऑडिट रिपोर्ट को साइन करते हो, जिस भी जगह पे साइन करते हो वो सिटी मेंशन करनी पड़ती है. और डेट तो बहुत ईजी है, जिस डेट पर आप साइन करो वो लिखोगे. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने आज ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी और मुझे कल एविडेंसेस मिल रहे हैं, उन एविडेंसेस के बेसिस, और मैंने उन एविडेंसेस को अपनी फाइल में भी लगा रखा है कि हाँ ये मुझे एविडेंस मिला था जिसके बेसिस पर मैंने रिपोर्टिंग करी है. अरे ऐसे कैसे हो सकता है, आपने रिपोर्ट इशू कर दी उसके बाद आपको एविडेंस मिल रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. तो डेफिनेटली आपकी जो एविडेंसेस होते हैं उसके बेसिस पर ही आप कंक्लूजन कर देते हो, कंक्लूजन के बेसिस पर यू फॉर्म द ओपिनियन. सो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपने रिपोर्टिंग कर दी, आपने रिपोर्ट इशू कर दी, साइन कर दी, डेट डाल दी और उसके बाद आपका कोई, आपकी फाइल में देखो तो कोई ऐसी डेट का एविडेंस है जो कि बाद में मिला है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बाद में मिला है, कंफर्मेशन है, रिटन रिप्रेजेंटेशन है, बाद में मिली है. ऑब्वियसली दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर
ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, क्यों? क्योंकि वो तो बाद में मिले। सो डेट शुड नॉट बी अर्लियर दैन द डेट ऑन विच द ऑडिट एविडेंसेस आर कलेक्टेड। एविडेंस कलेक्ट होने के बाद ही आप रिपोर्टिंग करते हो या एविडेंस जिन एविडेंसेस के बेसिस पर रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली द डेट शुड बी आफ्टर द रिसीट ऑफ दोज एविडेंसेस। ओके, सो ये हमारा पूरा का पूरा स्टैंडर्ड हो गया। एक बारी फटाफट से क्विकली सारे के सारे एलिमेंट्स रिवाइज करें, या ऐसा करते हैं पूरा स्टैंडर्ड रिवाइज कर लेते हैं क्विकली, ठीक है। सो ऐसे 700 किस चीज़ के ऊपर है? फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स, 2 टाइप की ऑडिट रिपोर्ट होती हैं। इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर हम जो रिपोर्ट कवर करने वाले हैं वो है अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। दूसरे टाइप की रिपोर्ट कौन सी होती है? मॉडिफाइड रिपोर्ट। मॉडिफाइड रिपोर्ट में आप 2 तरीके की ओपिनियंस दे सकते हो। फर्स्ट वन इज द अनमॉडिफाइड ओपिनियन, सेकंड वन इज द मॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऐसे 706 के अंदर करेंगे, जिसमें 2 तरीके के पैरा हो सकते हैं, या तो ईओएम पैरा या फिर अदर मैटर पैरा। मॉडिफाइड ओपिनियन की बात करें तो मॉडिफाइड ओपिनियन आपकी कैसी कैसी हो सकती है? क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। चलो ये सब डिस्कशन जो है बाद में करेंगे, क्योंकि ऐसे 705 के अंदर हम मॉडिफाइड ओपिनियन पढ़ेंगे, और अनमॉडिफाइड ओपिनियन अंडर दी मॉडिफाइड रिपोर्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन एसए 706। इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू कवर अप इज एसए 700 के अंदर अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, जिसका मतलब है जब ऑडिटर इस बात को कंक्लूड कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हर मटेरियल रिस्पेक्ट में एज पर दी एप्लीकेबल एफआरएफ बनाई गई है, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है? तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू फॉर्म ओपिनियन ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंटेंट या फॉर्म क्या होगा ऑडिटर की रिपोर्ट का, दैट इज टू बी मेंशन्ड, एंड थर्डली इट प्रमोट्स दी कंसिस्टेंसी इन दी ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि हर साल अगर आप इसी फॉर्मेट को लेकर बनाओगे तो डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी कंसिस्टेंसी इन योर रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं जनरल पर्पस फ्रेमवर्क में। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क में वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड सेकंड वन इज द कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की बात करें तो इसके अंदर आपको कंप्लायंस करना होता है विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एफआरएफ या फिर जो भी फ्रेमवर्क है। इसके अंदर एक और चीज़ अलाउड है, दैट इज द एक्नॉलेजमेंट पार्ट। एक्नॉलेजमेंट किस चीज़ की? कि मैनेजमेंट ने अगर कोई भी डिस्क्लोजर्स ज़्यादा दिए हैं जो कि एफआरएफ में रिक्वायर्ड नहीं थे, उसके भी अलग से डिस्क्लोजर्स दिए, उसके अलावा कोई डिस्क्लोजर्स दिए, तो दैट इज अलाउड। अगर मैनेजमेंट कोई भी एफआरएफ की रिक्वायरमेंट से डिपार्ट करती है, जो कि रेयर सिचुएशंस में होता है, बट अगर ऐसा करती है तो दैट इज टू बी एक्नॉलेज्ड बाय द मैनेजमेंट। लेकिन अगर मैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क की बात करूँ तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अंदर आपको फ्रेमवर्क का कंप्लायंस करना है, एंड देयर इज नो सच एक्नॉलेजमेंट, दैट मीन्स यू कैन नॉट डेविएट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एप्लीकेबल एफआरएफ, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं एलिमेंट्स ऑफ अनमॉडिफाइड रिपोर्ट को। अनमॉडिफाइड रिपोर्ट के अंदर वी हैव first of all we have the title, second one we have the addressee, third is the opinion section, fourth one is the basis for opinion, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ दीज आर दी ऑप्शनल वंस, अगर एप्लीकेबल होंगे तो ही लिखना है। कौन से? फिफ्थ इज द गोइंग कंसर्न, सेकंड इज की ऑडिट मैटर, सिक्स्थ इज की ऑडिट मैटर, सेवन्थ इज अदर इन्फॉर्मेशन। देन वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शंस, फर्स्ट इज द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन वी हैव द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर हमारे पास आ जाएगा अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, एंड उसके बाद सिग्नेचर, प्लेस एंड डेट, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है। सबसे पहले पढ़ते हैं टाइटल के बारे में। तो टाइटल के बारे में अगर मैं बोलूँ तो टाइटल इज टू डिस्टिंग्विश दिस रिपोर्ट फ्रॉम द रिपोर्ट्स इशूड बाय अदर्स। ऑडिट रिपोर्ट में बी टाइटल्ड एज इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। एड्रेसी की बात करें तो ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी एड्रेस्ड एज एप्रोप्रिएट। जनरली इट इज एड्रेस्ड टू द पर्सन्स फॉर whom it is prepared, that is the members of the company. Thirdly, opinion section. It includes the opening or introductory statement, which comprises of, first of all, you have to mention the name of the entity. Secondly, the title of each financial statement audited, that is the balance sheet, profit and loss, cash flow statement. Thirdly, you'll have to mention the period or date to which the financial statements belongs. And fourthly, you have to mention the statement that the financial statements have been audited, and this is my opinion on the financial statement. Unmodified opinion on the financial statement shall be expressed as फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के केस में कैसा होगा एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क के केस में कैसा होगा। कंप्लायंस फ्रेमवर्क के केस में मैनेजमेंट इज नॉट अलाउड टू डेविएट, सो दैट इज व्हाई द ओपिनियन इज गोइंग टू बी लाइक दिस। इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ, whereas in case of fair presentation framework the management is permitted to take the deviations. It just needs to mention the acknowledgement over there, and it has to be like this. In our opinion, the financial statements present fairly in all material respects in accordance with the applicable FRF. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, in our opinion the financial statements give a true and fair view of the financial statements. In our opinion the financial statements give a true and fair view of the financial statements in accordance with the applicable FRF. Correct?
अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, विच इज द बेसिस फॉर ओपिनियन. सो दिस सेक्शन विल प्रोवाइड द फॉलोइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, अ स्टेटमेंट दैट द ऑडिट वाज बीइंग कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. सेकेंडली, इट रेफर्स टू द सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट दैट डिस्क्राइब्स द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कि दिया होता है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के जस्ट बाद. It also states that the auditor comply with the ethical requirements including independence. It also covers the auditors believing that they had sufficient and appropriate audit evidence to provide a basis for opinion. ठीक है. अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, विच इज गोइंग कंसर्न. इट विल बी गिवन इन द ऑडिट रिपोर्ट वेन एवर रिक्वायर्ड बाय SA 570 इन केस ऑफ मटीरियल अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू द गोइंग कंसर्न. की ऑडिट मैटर की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट की ऑडिट मैटर का है, विच इज टू बी गिवन इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज इफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ SA 701 आर सो एप्लीकेबल. Next is other information. Wherever it is applicable, this section requires reporting as per the requirements of SA 720. Next, we have the management's responsibility. So this section covers the responsibility of management as to, first of all, the preparation of financial statements in accordance with the applicable FRF. Secondly, maintaining the adequate records to safeguard the assets and prevention and detection of fraud. Excuse me. Next is making reasonable judgments and estimates. Next is designing, implementing and maintaining the necessary IFC. Next is assessing appropriateness of going concern assumption. Next is overseeing the financial reporting process. Next, we have the auditor's responsibilities for the financial statements. In this, first of all, we are going to mention about SA 200. This section states that the overall objectives of the auditor with respect to obtaining the reasonable assurance that the financial statements as a whole are free from material misstatements, and issue the auditor's report that includes the auditor's opinion, explanation with respect to reasonable assurance and application of concept of materiality. Thirdly, statement that the auditor exercises professional judgment and maintain the professional skepticism throughout the audit. Next, we are going to mention about SA 315 and 330. State the auditor's responsibilities relating to identifying and assessing the risks of material misstatement, design and performing the procedures responsive to the assessed risks. Thirdly, obtaining the sufficient and appropriate audit evidences, understanding of the internal controls, expressing an opinion on the adequacy and operating effectiveness of the IFC with respect to financial statements. Next, we are going to mention about SA 540, evaluation of appropriateness of accounting policies and reasonableness of accounting estimates. Next, evaluate the overall presentation and structure and content of the financial statements. Evaluate the appropriateness of use of going concern basis of accounting. Also, the auditor's responsibility section shall also cover the following: SA 260 and SA 701. So, it also covers responsibilities as to the matters to be communicated to TCWG, providing a statement to TCWG on compliance with ethical requirements. Thirdly, determining the key audit matters out of the matters which are being communicated to the TCWG. Also, there is a choice जो auditor's responsibility की पूरा description है. You can either mention in the main body of the auditor's report, or you have a choice कि आप इसमें जो main auditor's report है उसके साथ एक appendix attach कर सकते हो, या फिर अगर आपको law और regulation के हिसाब से कोई भी appropriate authority ने auditor की responsibilities अपनी website पर mention करी हुई है, तो आप उस website का link भी दे सकते हो, reference दे सकते हो. ठीक है. Next point is about other reporting requirements. So other reporting responsibilities will be reported under a separate section titled as reporting on other legal and regulatory requirement. If the auditor is required to report on matters other than the financial statements, a separate main heading, that is report on the financial statements, should be given above the opinion section. Next point is signature. Should be in personal name and firm's name along with the membership number and FRN. Place की बात करें, city where the audit report is signed. Date की बात करें तो date should not be earlier than the date on which the audit evidences are collected. So ये हमने ऐसे 700 पहले समझ लिया, उसके बाद हमने रिविजन भी कर लिया. अब आपको हमेशा की तरह पता है आपको क्या करना है. अगर आपने पहली बार ये वीडियो देखा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि हर एक ऐसे की वीडियो में मैंने ये चीज़ बोली है कि आप पहले ऐसे को समझो, वीडियो से सुनो, उसके बाद एक बारी सारे के सारे नोट्स को गो थ्रू करो. उसके बाद आप क्या करोगे, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लो या कोई भी क्वेश्चंस का अपना मटेरियल ले लो, स्कैनर्स वगैरह ले लो जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस मेंशन्ड है इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से रिलेटेड, जिससे कि आपको पता चल जाए कि इस स्टैंडर्ड में से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो
This will help you a lot in gaining confidence with respect to these standards part in your audit subject. So that is all for today. If you like the video, don't forget to give a big thumbs up, share it with your friends, and subscribe to the channel in case you are new to this channel. So that is all for today. Thank you so much for watching, guys, and I'll see you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.